Okay, good evening, everybody, and welcome to the fourth day of UPSC Prelims Bootcamp. And today we are going to discuss the trend analysis of geography as well as environment. Geography and environment. Okay, so without wasting any time, we will start with the discussion. So I hope you can see the Excel sheet here. Can you see the screen sharing? Okay. Okay. So according to syllabus, what all topics do we have? We are having geography and geography of India as well as geography of world. Okay. And in environment, we have environmental ecology, biodiversity, climate change. Okay, which does not require any subject specialization. So today we are going to discuss all these aspects. Okay, and we will try to understand the trend. Now let us start with Civil Services Prelims 2021. And the first question was asked about permaculture farming and chemical farming. Okay, let us see what is the question. Permaculture farming and chemical farming. See, this was the question asked. The difference between permaculture farming and chemical farming was asked, and you have to select the correct choice. Okay, how is permaculture farming different from conventional chemical farming? And you have to identify the correct difference. Okay, so in this question we are not going to discuss the topic and what is permaculture farming and what is conventional farming, but we will give more time on trend analysis. Okay, so the difference between two kind of farming cultures was asked. And now if we talk about syllabus, the syllabus is about geography and agriculture. The importance of agriculture based questions in UPSC prelims has increased since last 2 to 3 years. इसके पहले agriculture related questions नहीं आते थे, कम आते थे. 1 or 2 questions used to be asked in UPSC prelims, but since last 2 to 3 years, the number of questions based on agriculture has increased. And that's why for UPSC prelims, selected topics from agriculture should be studied, because you are going to find more questions this time as well. So what to study in agriculture? I have provided a list of topics from agriculture. See what is the theme, what is the current theme, and what they are expecting from us. I have mentioned all the important topics. First of all the farming techniques that are in news. If you are reading current affairs and if you find any new farming technique, which is in news, okay, that is important from exam point of view. That is important from exam point of view. For example, I will just give you the names. I will suggest you the names. For example, monoculture, mixed cropping, zero budget natural farming. Many more questions had been asked in the previous year papers. System of rice intensification, this was also asked. Natural farming, relay cropping, strict cropping, traditional farming methods, vertical farming, and hydroponics. All these farming techniques which are new, which are modern, and which are constantly in news. Such kind of
agricultural techniques should be focused. Okay, vertical farming, we have discussed. One more question was asked in UPSC prelims 2020. Vertical farming, crop diversification and legume intensification. जो मैं अभी आपको थीम बता रहा हूँ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, इस पे ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है 2021 में भी पूछा गया है और सेम टॉपिक पे सेम क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है. लेट मी शो यू द क्वेश्चन. सी, see, UPSC prelims 2020 and same question on agricultural techniques and agricultural practices. This was repeated. In the context of India, which of the following is are considered to be practices of eco-friendly agriculture? Crop diversification, legume intensification, tensiometer use, and vertical farming. See, vertical farming, they have asked. Vertical farming, they have asked. Then crop diversification, legume intensification. So these are techniques, farming techniques which are in news. So यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी फार्मिंग टेक्निक्स है, जो भी फार्मिंग टेक्निक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सस्टेनेबल agricultural practices, all those practices which are related to sustainable agriculture or eco-friendly agriculture, okay. For example, mulching, green manuring, जितनी भी टेक्निक्स है, जितने भी प्रैक्टिसेस है जो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाती है, इको फ्रेंडली बनाती है, ऐसी सारी टेक्निक्स को आपको फोकस करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ एक 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें एक ऑप्शन दिया है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन. व्हाट इज लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन? लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, इसमें जो लेग्यूम्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स ये टाइप ऑफ स्पेशीज है जिनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है. एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. दिस इज कॉल्ड एज लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन. सिमिलरली सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ओके. ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछे गए हैं, इसके आगे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो या कोई करंट अफेयर का कंपाइलेशन आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दिखेंगी उनको प्रिपेयर करके जाना और उसमें थोड़ा सा 1 स्टेप 2 स्टेप अहेड जाकर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालकर एग्जाम में जाना, आपको इसमें बहुत फायदा होगा. ओके. जो लोग कंपाइलेशन यूज करते हैं, आप में से शायद कुछ लोग मतलब मेजॉरिटी कंपाइलेशन यूज करते होंगे यूपीएससी एग्जाम के लिए. उनके लिए मैं एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ. देयर आर सो मेनी compilations on current affair. Okay, करंट अफेयर्स के कई सारे कंपाइलेशंस मार्केट में अवेलेबल है. मैं यहाँ किसी ब्रांड का या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी सर का नाम नहीं लूंगा बिकॉज इट इज अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ स्वप्ना स्टडीज. बट आपको पता है कि कितने कौन कौन से ब्रांड, कौन कौन से
अच्छे करंट अफेयर से कंपाइलेशन मार्केट में अवेलेबल है. यू टेक एनी कंपाइलेशन, सम कंपाइलेशंस आर ईयरली, सम कंपाइलेशंस आर ईयरली. ठीक है, जो पूरा ईयरली आपको कंपाइल करके देता है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सारे सेक्शंस होते हैं. एंड सम करंट अफेयर कंपाइलेशंस आर मंथली. आप मंथली उन्हें डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्रिंट भी मंगवा सकते हो, या फिर अगर आपने आपके जो दोस्त है उन्होंने अगर ज्वाइन किया है तो दे शेयर विथ यू. सो व्हाट यू डू फ्रॉम जनवरी लास्ट जैन टू दिस मार्च, आपके पास जितने भी मंथली कंपाइलेशन है उन सब पीडीएफ को कंपाइल कीजिए. कंपाइल ऑल दोस पीडीएफ्स इन सिंगल फाइल. ठीक है, एक फाइल बनाइए. आप में से कितने लोगों को पता है ये टेक्निक, हाउ टू कंपाइल पीडीएफ, हाउ टू कंबाइन पीडीएफ फाइल्स? डू यू नो दिस टेक्निक? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आपके पास अगर 10 पीडीएफ है तो आप 10 पीडीएफ को कंबाइन करके एक सिंगल पीडीएफ बना सकते हो. Okay, there are so many tools on internet. You can search how to combine two PDF. You will easily get the tool. Okay, Nitro PDF करके एक सॉफ्टवेयर आता है, या फिर there are so many other tools as well. So what you should do, you should combine those current affair compilation in single PDF. Okay, and just now जिसे मैं हमेशा कहता हूँ ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र ऑफ करंट अफेयर्स, या फिर जो भी आप सबसे बड़ी जो स्टडी टेक्निक में हमेशा आपको बताता हूँ कि सर्च टूल. गो टू सर्च टूल एंड एक एक कीवर्ड यूज कीजिए और देखिए वो कीवर्ड कितने बार रिपीट होता है. फॉर एग्जाम्पल आप डालिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है, सो पूरे ईयर में, मतलब जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 यहां तक का आपको करंट अफेयर करना है. तो जितने भी 15 महीने हैं, 16 महीने हैं, उन 15 या 16 महीनों में जितने बार भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये वर्ड रिफ्लेक्ट हुआ होगा करंट अफेयर्स में, वो जरूर इस कंपाइलेशन में होगा, मंथली कंपाइलेशन में. ठीक है, और द पीडीएफ रीडर क्या करेगा, वो जो पीडीएफ रीडर है वो आपकी सेवा करेगा यहाँ पे. और जितने बार भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये वर्ड कीवर्ड रिफ्लेक्ट हुआ है, वो सारी न्यूज आपको वन बाय वन आपके सामने लेकर आएगा. ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होने के बाद आप फार्मिंग ये वर्ड यूज कीजिए. फार्मिंग इस वर्ड को डालिए और सर्च कीजिए, देखिए क्या क्या फार्मिंग टेक्निक्स आती है. ठीक है, उसके बाद आप इको फ्रेंडली ये कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, इसको डालिए और देखिए कितनी चीजें इको फ्रेंडली है पिछले 15 महीनों में. ओके, कहाँ पे इको फ्रेंडली ये वर्ड रिपीट हुआ है. ओके, इस टाइप से यू कैन कंपाइल, और इस टाइप से आप हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, अभी तो हम ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे या फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, तो यू कैन सर्च नेशनल पार्क. ठीक है, तो पूरे 15 महीनों में जो भी नेशनल पार्क न्यूज में होगा, करंट अफेयर्स में होगा, वो उसका आपको जो भी न्यूज आइटम है वो हाईलाइट हो जाएगा. नेशनल पार्क. ठीक है, नेशनल पार्क डालिए. पूरे 15 महीने में जितने भी जहां भी नेशनल पार्क ये रिफ्लेक्ट हुआ है, आपको वो न्यूज आइटम पता चल जाएगी. फिर फॉर एग्जांपल देखिए ना, राजाजी नेशनल पार्क. अगर राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर कोई न्यूज है और आपने नेशनल पार्क सर्च किया है,
तो नेशनल पार्क पूरी पीडीएफ में जहां भी रिफ्लेक्ट होता होगा वो जगह आपको दिख जाएगी। तो राजा जी नेशनल पार्क, फिर कान्हा नेशनल पार्क, फिर जितने भी मानस नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क करंट अफेयर्स में होंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दिस नेशनल पार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कीवर्ड है, डालिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको दिख जाएंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, आपको कीवर्ड पता होने चाहिए, तब जाके आपको ये जो टेक्निक है वो हेल्प करेगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो थीम है, उस थीम को लेकर आपके पास जितने भी कीवर्ड्स है उनको सर्च कीजिए, आपको एग्जाम में बहुत इसका फायदा होगा। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, ये कीवर्ड है, मोनोकल्चर ये कीवर्ड है। ठीक है, एक एक कीवर्ड आप डालिए, देखिए कौन कौन सी न्यूज आती है, और इस प्रकार से प्रिपेयर कीजिए। पाम ऑयल, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी इज पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या क्यों पूछा है, अभी देखते हैं। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट स्पेशीज, ये एक टॉपिक है। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या फिर इंपॉर्टेंट प्लांट स्पेशीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कई पैटर्न्स है। जो प्लांट स्पेशीज है, प्लांट स्पेशीज, तो इनको लेकर कई सारे पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांट स्पेशीज को लेकर। फॉर एग्जांपल इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट कौन सी प्लांट स्पेशीज किस हैबिटेट में पाई जाती है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्लांट स्पेशीज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर है तो उनको पूछा जाता है। प्लांट स्पेशीज के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अगर कुछ है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, तो उन एप्लीकेशंस को पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल हिमालयन यू ट्री, तो हिमालयन यू ट्री ये एक सब्सटेंस तैयार करता है जिसका नाम होता है टैक्सोल। तो टैक्सोल जो है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्सटेंस है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है हिमालयन यू। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, और जिस साल इसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया उसके 2 साल बाद एमपीएससी प्रीलिम्स, महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो प्रीलिम्स है इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जनरली यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं अगले साल या उसके बाद, जो भी स्टेट पीसीएस है उनमें भी वो रिफ्लेक्ट होते हैं। सो हिमालयन यू के बारे में पूछा गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन, अगर जो पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट के बारे में पूछा गया। पिचर प्लांट क्या है, उसके क्या फीचर्स है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट स्पेशीज, प्लांट स्पेशीज एज वेल एज एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप होता है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आपको ये देखना है कि किन किन प्लांट्स को टारगेट करना है, किन स्पेशीज को टारगेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा था, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। सी, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ एशिया, बट ये गलत है। पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू वेस्ट अफ्रीका। पाम ऑयल इज a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए पाम ऑयल यूज किया जाता है। The palm oil can be used to produce biodiesel, and all but one, means 2 and 3 statements are correct. 1 is incorrect, 2 and 3 is correct. अभी पाम ऑयल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि पिछले 2 या 3 साल से पाम ऑयल इंपोर्ट्स ये न्यूज में थे। हमारा जितना भी पाम ऑयल रिक्वायरमेंट्स है वो हम मैक्सिमम पाम ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो साउथ
Southeast Asia, Indonesia and Malaysia. These two countries provide us the majority of palm oil. ठीक है, ये पाम ट्री जो है वो नेटिव वेस्ट अफ्रीका का है, बट साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है और स्पेसिफिकली जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, व्हाट इक्वेटोरियल बेल्ट, फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है, सो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, इस रीजन में जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, स्पेसिफिकली इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इन कंट्रीज से मैक्सिमम पाम ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे इंडोनेशिया और मलेशिया में कि वहां से इंपोर्ट्स कम हो रहे थे, क्योंकि उनका जो सप्लाई चेन था वो डिस्टर्ब हो गया था, और हमें जितना पाम ऑयल चाहिए हमें उतना नहीं मिल रहा था। दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड द पाम ऑयल। सो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में हमेशा चलती रहती है, और इसी को पकड़ के ये लोग डिफरेंट सवाल पूछते हैं। जो एक्चुअल करंट अफेयर में न्यूज है उसको वो लोग नहीं पूछते, बट पाम ऑयल इज इन न्यूज, सो इसीलिए पाम ट्री के बारे में सवाल बनता है। पाम ट्री का नेटिव क्या है, हैबिटेट क्या है, पाम ऑयल के यूजेस क्या है, ओके, पाम ऑयल के एप्लीकेशंस क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन बनता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग। ओके, सो हाउ टू टारगेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर्स एंड शंकर आईएएस, इनकी जो नोट्स है, these are popular notes, so you can use that. We import most of the palm oil from Southeast Asia. We import more edible oil than we produce. That's why they are asking. Southeast Asian country, yes. Indonesia is a Southeast Asian country. So यहाँ भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। You should know basic regions, regions of world. जो वर्ल्ड मैप है, बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक जो नो जो ये जो पाम ट्री है ना, जो नेटिव वेस्ट अफ्रीका का है, बट हम इंपोर्ट अभी जो आज जो कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो साउथ ईस्ट एशिया में होता है। ठीक है, पाम ऑयल ट्री नेटिव होना और पाम ऑयल इंपोर्ट करना, इसमें डिफरेंस है। नेटिव पूछा है, ठीक है, सो यू शुड फोकस ऑन दीज कीवर्ड्स, क्या पूछा है। सो देखिए, अभी इस टाइप के सिली मिस्टेक्स आप एग्जाम में करते हो, इसीलिए आपको आंसर पता होता है, बट सिली मिस्टेक्स की वजह से जो इंपॉर्टेंट एक एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, और इसीलिए आपका आंसर गलत होता है। सो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। सो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज, हम और एग्जाम्पल देखेंगे। और कोई एग्जाम्पल? हाँ, सी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड प्लांट स्पीशीज पे और एक सवाल ऑप्शन दिया गया था, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? सी among the following which one is least water efficient crop? So correct answer is sugarcane. See, it is agricultural crop. Sugarcane is important crop, important cash crop. शुगर की जो प्राइसेस है वो अप एंड डाउन होती है हमेशा। शुगर फैक्ट्री के जो पॉलिसीज है एंड शुगर को लेकर जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है, वो भी हमेशा न्यूज में होती है। कभी कभी जो शुगर केन फार्मर्स है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कभी कभी शुगर फैक्ट्रीज क्लोज डाउन हो जाती है, तो हमेशा ये न्यूज में मैटर चलता रहता है। सो एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट थीम एंड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉप्स की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप्स की वाटर यूज एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ये भी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्यू इयर्स बैक वाटर एक्सपोर्ट वाज highlighted in UPSC एग्जाम। व्हाट इज वाटर एक्सपोर्ट? हम लिटरली हम वाटर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जितने भी क्रॉप्स है जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जो बहुत ज्यादा पानी डिमांड करते हैं, ऐसे क्रॉप्स को हम आगे जाकर एक्सपोर्ट करते हैं। सो इनडायरेक्टली वी आर एक्सपोर्टिंग आवर वाटर। सो वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, these topics are very important from geography point of view and agriculture point of view. See again, as I highlighted the theme, important theme, climate smart agriculture was asked in UPSC prelims 2021. Climate smart agriculture, ठीक है? So climate smart village approach in India, climate change, agriculture and food security, and who initiated the program, इस टाइप का क्वेश्चन ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे पूछा गया था। सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो प्रोग्राम किसने शुरू किया था, क्या ऑब्जेक्टिव है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, उसमें क्या रिसर्च होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। So climate smart agriculture, eco-friendly agriculture, sustainable agriculture, these themes are very important from exam point of view। और current affair point of view आप पूछ रहे थे, तो these type of topics are always in current affairs। कोई नए तरीके का पढ़ाई जरूरी नहीं है, different studies not required, same static cum dynamic studies advised। सी वेजिटेशन ऑफ सवाना, सवाना वेजिटेशन। जब हम इंपॉर्टेंट प्लांट स्पेशीज के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ साथ वेजिटेशन के बारे में भी बात की जाती है यूपीएससी प्रीलिम्स में। So let me tell you, first point, प्लांट स्पेशीज। जितने प्लांट स्पेशीज इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ वेजिटेशन एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं? फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ओके। उसके बाद डेसिडुअस, ओके। उसके बाद थॉर्न, थॉर्न फॉरेस्ट। जितने भी फॉरेस्ट टाइप्स है, फिर ट्रॉपिकल के साथ साथ फिर सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ओके। उसके बाद कोनिफेरस फॉरेस्ट है, उसके बाद है बोरियल फॉरेस्ट है, ठीक है। जितने भी फॉरेस्ट के टाइप्स है उनको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके जो मेजर मेजर फीचर्स है उनको हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए वेजिटेशन ऑफ सवाना, सवाना वेजिटेशन ये अफ्रीका में पाया जाता है, सूडान, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो which condition limit the forest development in savanna? Burrowing of animals, fire grazing, seasonal rainfall and soil properties, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को उसमें फोकस किया गया है। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। सी वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद, अभी वेजिटेशन ऑफ सवाना को डिस्क्राइब किया है, और जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट है किन कंडीशन पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस? द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। सवाना वेजिटेशन में फॉरेस्ट डेवलपमेंट किन कंडीशन पे डिपेंड करता है ये पूछा गया था। सो उस आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें
देखना है। सो सेम थीम है, करंट जो ऑनगोइंग थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है, वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड देयर फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशीज एसोसिएटेड विद देम, मतलब फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस टाइप के स्पेशीज पाए जाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में किस टाइप के स्पेशीज, प्लांट स्पेशीज पाए जाते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट में किस टाइप के स्पेशीज पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस, कैक्टस ये थॉर्न फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट में डेजर्ट वेजिटेशन है कैक्टस, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा बबुल ट्री है, सो बबुल ट्री भी ये सेमी एरिड एरियाज में आपको आप देखते हो, और डिसिडुअस एरियाज में आपको ये दिखाई देता है। सो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की वेजिटेशन इंडिया के किस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके क्या क्या फीचर्स है, इन इसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली जब हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में 2 सवाल आए थे, एक आया था सवाना वेजिटेशन के ऊपर और एक आया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया था फॉरेस्ट का कि लीफ लिटर होता है, उसके बाद सॉइल सरफेस ऑलमोस्ट बेयर होता है, उसके बाद एपीफाइट्स होते हैं वहां पे, एपीफाइट्स मींस मनी प्लांट या फिर जो क्लाइंबिंग ट्रीज होती है जो एक दूसरे ट्रीज के ऊपर वो बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एपीफाइट। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया था और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो फॉरेस्ट कौन सा है ये आपको पूछा गया था। सो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रिप्शन आइडेंटिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन आइडेंटिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आल्सो बी आस्क्ड ऑन वेजिटेशन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, यही थीम चल रही है एग्रीकल्चर में यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में। और एक सवाल, मोरिंगा एंड टैमारिंड ट्री। सो व्हाट इज मोरिंगा ट्री? मोरिंगा ट्री का मतलब है जो आप ड्रम स्टिक्स खाते हो, साउथ इंडियन डिश होती है वड़ा सांबर, इडली सांबर, जो साउथ इंडियन सांबर होता है उसमें ड्रम स्टिक्स होते हैं, जिसे मराठी में शेवग्याची शेंग कहते हैं। सो मोरिंगा इज शेवग्याची शेंग एंड टैमारिंड इज इमली का पेड़। सो इन दोनों स्पेशीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट, अभी ये सवाल किस पे आता है? इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। कहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोरिंगा, सी यहाँ पे है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोरिंगा और ड्रमस्टिक ट्री is a leguminous evergreen tree. This is correct. Tamarind tree is endemic to South Asia. ठीक है, endemic का मतलब जो जिसका ओरिजिन है टैमारिंड ट्री का वो है साउथ एशिया, बट ये स्टेटमेंट में कहा है, बट दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज द टैमारिंड ट्री इज एंडेमिक टू ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड नॉट साउथ एशिया। Third statement, in India most of the tamarind is collected as minor forest produce. Yes, correct. India exports tamarind and seeds of moringa. This is also correct. Seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuels. This is also correct. See, अभी आप देख रहे हो कि 2 सवाल अभी के अभी पूछे गए थे बायोफ्यूल के ऊपर। बायोफ्यूल, पहला क्वेश्चन पूछा गया था पाम ऑयल, पाम ऑयल, और उसमें पूछा गया था कि पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल। सो दिस स्टेटमेंट वाज आल्सो करेक्ट। एंड सेकंड, टैमारिंड मतलब इमली एंड मोरिंगा,
means drumstick. This can also be used as biofuel. So this statement is also correct. So see the important theme used by UPSC. They are asking about biofuel. बार बार बायोफ्यूल के बारे में वो पूछ रहे हैं. बायोफ्यूल में उसके बाद उसके साथ साथ बायोडीजल. ठीक है, तो बायोडीजल बायोफ्यूल के बारे में पूछेंगे. तो किस लिंक से पूछ रहे हैं? एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, फेमस क्रॉप्स और उनका रिलेशन विथ बायोडीजल. इस रिलेशन को वो हाईलाइट कर रहे हैं. सो आपको यहाँ पे ये एक थीम इंपॉर्टेंट पता चल जा रही है. इंपॉर्टेंट थीम कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर यूज एज बायोफ्यूल. देयर यूज इन बायोफ्यूल. तो आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनानी पड़ेगी. आपको थोड़ा सा नेट पे सर्च करना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से क्रॉप्स है, कौन कौन से प्लांट स्पेशीज है जो बायोफ्यूल में यूज किए जा सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड सिंस लास्ट 2 to 3 years. एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, जो इसी टाइप बायोफ्यूल से कनेक्ट किया गया है. एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड बायोफ्यूल, इसके रिलेशन में एक और क्वेश्चन पिछले 2 सालों में पूछा गया है, उसको भी मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो पॉइंट मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है सब? Yes, other people also let me know in the comment box. Okay, very good. So let me find that one question on same theme. See, UPSC Prelims 2020, National Policy on Biofuels. Wait a minute, I will show you that question. See, UPSC Prelims 2020, according to India's national policy on biofuels, which of the following can be used as raw materials for production of biofuels? Cassava. Cassava means इसको मराठी में साबूदाना बोलते हैं. और इवन इन नॉर्थ इंडिया जब उपवास होता है तो साबूदाना खाते हैं. आई एम नॉट श्योर कि कैन यू आइडेंटिफाई इट और नॉट. सो वाइट होता है, जो होम्योपैथी की गोलियां होती है ना, वैसा साबूदाना होता है कैसावा. देन डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड, यस सैगो. Damaged wheat grains, groundnut seeds, horse gram, rotten potatoes, and sugar beet. So this question was also asked, and linking the food crops or agricultural crops to the production of biofuels. So जो मैं आपको बता रहा हूँ कि how to identify a theme and how to identify and how to predict the questions. So क्या आपको ऐसा लग रहा है अभी कि यूपीएससी के सवाल प्रेडिक्ट करना इजी हो चुका है आपके लिए? आप भी इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर पाओगे? ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट आपको ये विश्वास तो हो रहा होगा कि अगर हम एक राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे
तो हम क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? रजीत, विभूति, अवध नारायण, शुभंकर, यस, वेरी गुड। So I hope कि you are getting the theme. Yes. Okay. So थोड़ा हम ज्योग्राफी कर ही रहे हैं तो ज्योग्राफी ये कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ज्योग्राफी में आपको ये पूछा जाएगा, अभी हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के बारे में बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी। Rivers is very important theme in UPSC prelims. So important rivers in the world and important rivers in India. So important river systems, origin of the rivers, tributaries, distributaries, ये बहुत important aspect है, बहुत important theme है। और देख लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेकॉन्ग, थेम्स, वोल्गा एंड जाम्बेजी। तो ये चारों रिवर्स किस ओशन में जाकर मिलती है, किस सी में जाकर मिलती है, ये पूछा था। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। ठीक है, सो दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन और इसके लिए आपको डेली मैप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंडिया का मैप एज वेल एज वर्ल्ड मैप। एंड सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन द एमपीएससी प्रीलिम्स, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। सी important क्रॉप्स एंड प्लांट स्पीशीज, कॉटन के बारे में पूछा है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रोइंग कंडीशंस, अभी देखिए, सी अगेन दिस इज अ डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था और जो कॉटन के बारे में था, ठीक है, और आपको सही क्रॉप का नाम पहचानना था उसमें। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रॉप। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। Finding these questions is very tricky in paper, so that's why I created an Excel sheet. Okay, ठीक है, leave it. So I hope आपको समझ में आ रहा है कि कॉटन के ग्रोइंग कंडीशंस का डिस्क्रिप्शन दिया था और आपको 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन था, दैट इज कॉटन, और आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि ये डिस्क्रिप्शन किस क्रॉप के बारे में है। ठीक है, सो these kind of questions are asked in geography and agriculture. Okay, now shifting over to environment. अभी तक हमने geography के जितने भी important themes है वो हमने देख ली है। Now we will shift over to environment. Okay, environment पे shift होने से पहले 2-3 सवाल और हम देख लेते हैं geography पे। जो मैंने river system के बारे में आपको theme बोली थी, so this question is from UPSC prelims 2021 based on Indus river system. Which river join Indus river directly? और उसमें 4 आपको ऑप्शन दिए थे, 4 रिवर के नाम दिए थे और उसमें से कौन सी रिवर इंडस नदी को जाकर डायरेक्टली मिलती है? तो करेक्ट आंसर इज चेनाब। ओके, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एंड माजिद हुसैन से आप कवर कर सकते हो। और इसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स इन इंडिया है, मेजर रिवर्स एंड देयर ड्रेनेज बेसिन, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स के जो नॉन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज है या ट्रिब्यूटरीज है, उनके बारे में आपको पूछा जाता है। ये बात ठीक से समझ लीजिए, पिछले 3-4 साल से यूपीएससी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है
जो पॉपुलर रिवर्स है, फॉर एग्जांपल गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, इन इंपॉर्टेंट रिवर्स के, इन पॉपुलर रिवर्स के जो लेसर नॉन ट्रिब्यूटरीज है, ऐसी ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ऐसी ट्रिब्यूटरीज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सो अगर आप सारे रिवर सिस्टम्स को करके जाओगे और सारे ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम आपको पता होंगे, तो यू कैन अप्लाई द एलिमिनेशन टेक्निक and you can solve these kind of questions in a correct manner. फिर ज्योग्राफी में एक और थीम बहुत इंपॉर्टेंट चलती है, दैट इज लेक्स एंड वाटर बॉडीज, जिसमें इंपॉर्टेंट लेक्स, सलाइन लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, बैक वाटर्स, उसके बाद रमसार साइट्स या फिर वेटलैंड्स, इनके बारे में आपको पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन था दिद्वाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू, इन 4 प्लेसेस के नाम दिए गए थे और आपको पूछा गया था कि ये क्या है। सो दीज आर द करेक्ट आंसर इज दीज आर सलाइन लेक्स। सलाइन लेक का मतलब है दीज आर द सॉल्ट वाटर लेक्स इन राजस्थान। Okay, so this is again a geography question, map based question, and this can be solved from NCERT and Majid Hussain. And here you can also use the Lucent general knowledge, you can also use for geography. So important lakes, saline water lakes, freshwater lakes, glacial lakes, and Ramsar sites and wetlands. ठीक है, वेटलैंड का मतलब है कि जहाँ पे 1 मीटर से भी मतलब 1 मीटर से ज्यादा डेप्थ तक पानी जमा हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है, दैट साइट इज कॉल्ड एज वेटलैंड। ओके, और जितने भी वेटलैंड्स है वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स होती है और उनके कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन है, दैट इज कॉल्ड एज रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन, ठीक है। तो रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी वेटलैंड्स है उनका कंजर्वेशन किया जाता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में और इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी रामसार साइट्स है, वेटलैंड्स है, ग्लेशियल लेक्स है, ग्लेशियल लेक्स का मतलब जो लेक ग्लेशियर से बना हुआ है। उसके बाद फ्रेश वाटर लेक, फॉर एग्जांपल लेक वूलर है, देन वेम्बनाड कोल है, देन केरला बैक वाटर्स है, दीज आर ऑल फ्रेश वाटर लेक्स। उसके बाद सलाइन लेक में ये सारे दिद्वाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, इन राजस्थान देर आर सो मेनी सलाइन लेक्स, और उसके साथ साथ लेक चिलिका इन ओडिशा। सो इन सारी वेटलैंड के ऊपर, लेक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। सो इफ यू गो, मैंने आपको एक कंपाइलेशन, एक बुक बताया था मैंने आपको, जिसमें लास्ट 26 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उनका कंपाइलेशन है, टॉपिक वाइज कंपाइलेशन है। तो उसमें आप पीडीएफ ओपन कीजिए, सर्च कीजिए, क्या कीवर्ड होगा, लेक्स, और देखिए कि कितने क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। उसके बाद जस्ट सर्च वेटलैंड और अब देखिए कि पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा ऐसा नंबर दिखेगा, क्योंकि बहुत बार आपको ये क्वेश्चन पूछे गए। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन रिवर, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021, ये रिवर पे दूसरा क्वेश्चन है 2021 में। विच रिवर अराइजेस फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में कौन से रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं। सो अगेन दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, again important rivers and their origins, semi known or unknown rivers and their origin, and usually focus is on major river system, but UPSC focus on secondary rivers। जो स्टूडेंट्स रिवर्स को प्रिपेयर करते हैं, बड़ी बड़ी रिवर सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन यूपीएससी पूछता है अननोन रिवर सिस्टम और जो सेमी नोन रिवर सिस्टम्स है उनको फोकस करता है। नेक्स्ट, ग्लोबल ओशन कमीशन, इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जो ओशन इकोसिस्टम है
उसको यूपीएससी फोकस करता है। ओशन इकोसिस्टम हो या फिर एस्चुराइन इकोसिस्टम हो, सी हो, इसको लेकर यूपीएससी बहुत सीरियस होता है हमेशा। तो दिस ओशन इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम। ओशन में जितने भी मिनरल वेल्थ है वो भी फोकस एरिया है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाय ओशन, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी मतलब जो बायोडाइवर्सिटी हमें ओशंस में दिखाई देती है, इनके ऊपर भी इनका बहुत फोकस होता है यूपीएससी का। सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, तो ग्लोबल ओशन कमीशन के बारे में पूछा गया था कि फंक्शंस क्या है, क्या लाइसेंस, किस टाइप का लाइसेंस वो कंट्रीज को देता है, इंडिया को किस प्रकार का लाइसेंस मिला है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन ज्योग्राफी। Then ocean currents, and these are typical themes. You can understand and identify them. Okay, let's shift over to environment because we have less time remaining. See, R2 code of practices. What is R2 code of practices? R2 code of practices is recycle with responsibility. Okay, so that's why recycling of waste product is an important theme, an important topic of discussion in current affair. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये सबसे एक मेजर प्रॉब्लम है पिछले कई सालों से, और इस पे न्यूज़पेपर में बहुत डिस्कशन चल रहा है। हजार्डस सब्सटेंसेस जो है, ये भी मैंने आपको बोला है कि जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस है वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ई वेस्ट ये एक हजार्डस सब्सटेंस है और उसका मैनेजमेंट और उसका रिसाइकलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिछले कुछ सालों से। दैट्स व्हाई हजार्डस सब्सटेंसेस का रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स है, हजार्डस सब्सटेंसेस का रिसाइकलिंग या जो एनवायरमेंटल रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, इसके लिए जितने भी इनिशिएटिव्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसीलिए R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस वाज आस्क्ड। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में जो भी ऐसा इनिशिएटिव हो जो एनवायरमेंट रिलेटेड है, एनवायरमेंट को साफ करने से रिलेटेड है, रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, क्लीनिंग से रिलेटेड है, दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको एक थीम बोली थी, आप में से कुछ लोगों के साथ मैंने पर्सनली बात भी की है, मैंने आपको बताया भी है कि हजार्डस, फेटल एंड डेंजरस, दीज आर फेवरेट कीवर्ड्स ऑफ यूपीएससी। और इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी हजार्डस केमिकल्स है, हजार्डस एमिशंस है, हजार्डस पोल्यूटेंट्स है, इन सब के बारे में यूपीएससी सवाल पूछता है। फॉर एग्जांपल कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हजार्डस केमिकल जितने भी है उनको आपको प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू कार्बन। अब ऐसे कोई जितने भी कंसेप्ट चल रहे हैं न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में, इसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। कार्बन इज इंपॉर्टेंट थीम, कार्बन एमिशन इज इंपॉर्टेंट थीम, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज इंपॉर्टेंट थीम, ग्लोबल वार्मिंग इज इंपॉर्टेंट थीम, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन कैप्चर इज इंपॉर्टेंट थीम। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, क्योंकि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर में जाइए, जो मैंने आपको बुक दिखाया था उस दिन, 26 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन है, और उसमें आप सर्च कीजिए कार्बन, ये वर्ड सर्च कीजिए कार्बन, और देखिए कि कार्बन इस वर्ड को लेकर पिछले 26 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए। ओनली वन वर्ड कार्बन, you will find many questions on carbon sequestration and carbon capture, carbon trading, greenhouse gases, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, फ्यू इयर्स बैक ब्लैक कार्बन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक कार्बन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक 2017 में ब्लैक कार्बन पूछा गया था और 2021 में ब्लू कार्बन पूछा गया है। ठीक है, सो आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूं आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कमेंट करके बता दीजिए। ओके, okay, now this question, soil is an important theme. सॉइल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो उसे मत छोड़ना। अल्ट्रावायलेट रेंज है वो साइंस का टॉपिक है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू साइंस। ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो सॉइल से रिलेटेड ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लाइकेन एंड मॉस which is mostly to be found on a surface without soil। अभी ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है मैं बताता हूँ आपको। एनवायरमेंट में एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। इसका मतलब क्या है बता देता हूँ। व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन? सबसे पहले एक रॉक होता है, रॉक, यू नो व्हाट इज रॉक? खड़क एक रॉक होता है, ठीक है, तो इस पे सॉइल नहीं होती है, सॉइल सरफेस इज नॉट डेवलप्ड ऑन द रॉक, एक रॉक है जिसे हम बेड रॉक भी कहते हैं। फिर इस रॉक का वेदरिंग होता है, वेदरिंग होता है पानी के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, केमिकल के साथ इसका रिएक्शन होता है और फिर सॉइल डेवलपमेंट ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, बट ये पूछा है कि प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉइल अगर डेवलप हुई है, कोई भी सॉइल सरफेस अगर डेवलप हुआ है तो उस पे सबसे पहला फर्स्ट वेजिटेशन, फर्स्ट वेजिटेशन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन। किसी भी सॉइल सरफेस पे अगर पहला वेजिटेशन मतलब पहली बार अगर कोई प्लांट्स उगते हैं देन इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट वेजिटेशन या फिर प्राइमरी सक्सेशन। एंड इफ यू कट दिस प्राइमरी वेजिटेशन और फर्स्ट वेजिटेशन, तो जितना रिच ये फर्स्ट वेजिटेशन था, जितना घना ये जंगल हुआ करता था, उतना घना वो सेकंड वेजिटेशन नहीं होगा, सेकंड वेजिटेशन उतना घना नहीं होगा, उतना डीप डेवलप नहीं होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। सो these are concepts from environment ecology। ठीक है, तो सक्सेशन समझने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि जो भी रॉक है, रॉक सरफेस पे सॉइल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। और जब आप ये एनवायरनमेंट पर पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रॉक सरफेस पे जहां पे कहीं कोई भी सॉइल डेवलप नहीं हुई हो, वहां भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट स्पेशीज वहां डेवलप हो सकते हैं, वहां फ्लरिश हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर lichen and moss। These are likely to be found on a surface without soil। So that's why this question is asked on in environment, and the important theme is related to soil। सॉइल डेवलपमेंट, सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही ये कंसेप्ट है, इसलिए इसको पूछा गया है।
और फिर ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि व्हाट इफ फॉरेस्ट आर क्लियर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर क्लियर कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है। सो अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम क्लियर कर देंगे तो वहां फिर से कोई जंगल खड़ा नहीं होगा, बिकॉज इसका रीजन ऐसा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो टॉप सॉइल सरफेस है ये ऑलमोस्ट बेयर होता है, देयर इज नो टॉप सॉइल, ठीक है। सो अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, और दूसरी बात इतना ज्यादा रेनफॉल होता है कि जो भी बची कुची सॉइल और ह्यूमस है वो पानी के साथ बह जाता है, और इसीलिए इफ यू क्लियर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देन देयर कैन बी नो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। सो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, विच फॉरेस्ट हैज ऑलमोस्ट बेयर टॉप सॉइल। ये इसके पहले हमने देखा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो डिस्क्रिप्शन था उसमें ये बोला था। एंड प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। सो सॉइल रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम बन जाते हैं, जिन आपको एग्जाम के पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको पूछा जाएगा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको बोला था जो इम्पोर्टेंट प्लांट स्पेशीज है और उनका एप्लीकेशन, उनका फीचर्स। सो इसी सीरीज में दूसरा सवाल है लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मॉस्किटो रिपेलेंट, ओके। सो आपको ये पूछा था कि कौन सी स्पीशीज मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पर यूज की जाती है। सो देयर वर 4 ऑप्शंस, कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, नट ग्रास एंड लेमन ग्रास। सो लेमन ग्रास वाज द करेक्ट आंसर। लेमन ग्रास मतलब अगर हम आपको पता होगा कि लेमन ग्रास टी ये पिछले कई सालों से फेमस हो चुकी है, ठीक है। घास वाली चाय, हिंदी में अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो घास वाली चाय बहुत फेमस है। उकाला जो होता है घास वाला वो बहुत फेमस होता है। इवन इन महाराष्ट्र ऑल्सो गौती चाह इज वेरी फेमस। सो दैट्स व्हाई लेमन ग्रास एंड लेमन ग्रास ऑयल वाज वेरी फेमस इन लास्ट 45 years, यस। एंड लेमन ग्रास का एक और एप्लीकेशन है, बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मॉस्किटो रेपेलेंट। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थीम चल रही है कि इम्पोर्टेंट प्लांट स्पेशीज एंड देयर एप्लीकेशन एंड देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेमन ग्रास एंड इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ लेमन ग्रास, इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यस, फॉर फैट लॉस के लिए भी ये श्रद्धा कपूर की एडवर्टाइज आती थी कि आदत डाल लो, नहीं क्या, ग्रीन टी की एक एडवर्टाइज आ रही थी, आदत डाल लो, दैट वाज द पंच लाइन ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एंड मॉस्किटो रिपेलेंट एंड लेमन ग्रास एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको पर्सनल स्टोरी बताना चाहूंगा। यस, लिप्टन टी का एडवर्टाइज है, उसमें श्रद्धा कपूर बताती है कि आदत डाल लो, सो दैट इज बेस्ड ऑन ग्रीन टी। सो लेमन ग्रास एंड इट्स मॉस्किटो रिपेलेंट प्रॉपर्टीज, इस पे मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन माय सिस्टर वाज इन क्लास 12th, she studied in CBSE pattern, and she prepared one project, herbal mosquito repellent। तो ये इसका प्रोजेक्ट का टाइटल था हर्बल मॉस्किटो रिपेलेंट, और उसमें हमने लेमन ग्रास एंड लेमन ग्रास ऑयल उसमें यूज किया था। सो वो प्रोजेक्ट इतना हिट हुआ कि रीजनल लेवल पे हमें टॉप प्राइज मिला था। देन नेशनल लेवल पे जो साइंस कंपटीशन थी न्यू दिल्ली में, तो उसमें भी हमें एक सेकंड प्राइज मिला है। एंड बेंगलोर में CBSE का नेशनल साइंस एग्जीबिशन था, वहां भी हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, द मॉस्किटो रेपेलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लेमन ग्रास, ओके। सो और ये बात कब की है, 2011-12 की बात है ये। सो यू शुड सी कि जितने भी हर्बल स्पेशीज है उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को लेकर सवाल पूछा जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट था ये भी CBSE का ही था,
और सीबीएसई बोर्ड और जितने भी एनसीईआरटी है, तो इन्हीं में से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं. तो यू शुड कंसिडर ऑल दिस थिंग्स. यस, थैंक यू सो मच अवध. ओके, साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स एनवायरमेंट में और एक नई थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है, उसके बारे में बताना जा रहा हूं. साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन ये था कि हु अमंग द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन ओशन फूड चेन. यस, लेमन ग्रास इज गौती चा, सेम. Which among the following are primary producers in ocean food chain? This was asked. और उसमें से करेक्ट आंसर है साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स. ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ओशन फूड चेन में. आपको फूड चेन का कंसेप्ट अगर पता है तो बेसिक कंसेप्ट होता है, सबसे पहले होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है. और अगर लैंड और टेरेस्ट्रियल फूड चेन है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट होते हैं. प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. अगर टेरेस्ट्रियल या लैंड फूड चेन है. और ओशन फूड चेन में, ओशन फूड चेन अगर हम देखेंगे तो डायटम्स एंड साइनोबैक्टीरिया, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. फिर प्लांट्स के ऊपर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स वो ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. फॉर एग्जांपल बकरी, गोट, दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं. ठीक है, गोट. या फिर जिसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स. ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर जो गोट्स और हर्बीवोर्स को खाते हैं. ठीक है. फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स. इस टाइप से फूड चेन होता है या फूड पिरामिड होता है. ठीक है. सो इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछा गया, जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है उसके बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले, बट इस बार किस पे फोकस किया गया है? ओशन फूड चेन के ऊपर. सो you should consider this topic as important. Food chain, food web, food pyramid, energy pyramid, biomass pyramid, flow of energy in ecosystem, marine food chain, terrestrial food chain, desert food chain, forest food chain. ये सारी चीजें आपको शंकर आईएएस, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर में मिल जाएगी. ठीक है. अगेन ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट थीम है जो हमेशा आपको पूछी जाती है, हेजहॉग एंड पैंगोलिन. जो इंपॉर्टेंट एनिमल स्पेशीज होते हैं और उनके जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ एनिमल्स, तो इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. तो क्वेश्चन ये था कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एनिमल रोल अप हो सकता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, मतलब अपने आप को ऐसा रोल कर लेता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज हेजहॉग एंड पैंगोलिन. तो डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ एनिमल्स, होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स, कैमोफ्लेजिंग मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स. कैमोफ्लेज का मतलब है कि कुछ एनिमल्स रंग बदलते हैं. ठीक है. तो जैसे कैमिलियन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था. ठीक है. तो उसमें भी 2 टाइप के कैमोफ्लेज होते हैं. एक होता है सीजनल कैमोफ्लेज, कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीजन के हिसाब से कलर चेंज करते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक्टिव कैमोफ्लेज करते हैं. एक्टिव कैमोफ्लेज का मतलब है वो अपने जो एनवायरनमेंट है, जिस टाइप के एनवायरनमेंट में वो जाएंगे उस एनवायरनमेंट का कलर वो धारण कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट इज सिग्नलिंग. सिग्नलिंग में साउंड आता है, अलग अलग टाइप का साउंड क्रिएट किया जाता है
या फिर सिग्नलिंग के लिए भी कलर चेंज किया जाता है टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। यस, सो लिजार्ड है, तो या फिर कैमेलियन है, इस टाइप के जो कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स है इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ऐसे जितने भी एग्जांपल्स शंकर आईएएस में दिए गए होंगे या फिर न्यूज़पेपर्स में दिखते होंगे, तो यू शुड गो फॉर इट। अब मैं, इफ यू आर नोटिसिंग, मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का नाम नहीं लेता हूँ या पर्टिकुलर क्लास का नाम नहीं लेता हूँ, बट आई एम टेकिंग नेम ऑफ शंकर आईएएस रिपीटेडली बिकॉज मार्केट में दूसरा कोई बुक है ही नहीं जो एनवायरमेंट के लिए एक अच्छा एक रिसोर्स दे सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट नेम, सो दैट इज गुड बुक। तो ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं किसी पब्लिकेशन का, तो जो आपके काम का है मैं आपको वही बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑन फूड चेन एंड फूड वेब। डेट्रिटोवोरस एनिमल्स कौन से हैं आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया था। earthworm, millipedes and wood lice. So these are detritivore animals. So again, food chain, food web, primary producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and detritivores. इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। These are environment related concepts. Again, ecology. इकोलॉजी में जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स है, एनिमल के जो अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं, there are so many ecological relationships. For example, symbiosis, for example mutualism, for example competition, parasitism, predation and commensalism. So ये अलग अलग relationships है इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन में दो जो स्पेशीज है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है। पैरासाइटिज्म में एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड हो जाता है, पैरासाइट हो जाता है। प्रीडेशन का मतलब है एक एनिमल दूसरे एनिमल को प्रीडेट करता है, मतलब उसको खा लेता है। सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, और इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसके एग्जाम्पल, जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज रिलेशनशिप्स आप जितने एग्जाम्पल्स करके जाओगे, आपका जो अटेम्प्ट है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको टारगेट करते आएंगे। एंड फोकस ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यू शुड कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। अगेन एनिमल्स के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एलिफेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्यों पूछा गया था ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप, एलिफेंट्स के ऊपर, इंडियन एलिफेंट्स के ऊपर आपको पूछा गया था क्वेश्चन। विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन एलिफेंट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में जो एलिफेंट ग्रुप होता है उसका लीडर फीमेल लीडर होती है। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड इज 22 मंथ्स। कैल्विंग एज ऑफ एलिफेंट्स उसके बारे में पूछा गया था। एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका स्टेट, ये पूछा था। ठीक है, कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो कर्नाटका में पाए जाते हैं। सो आई एम नॉट शोइंग यू द क्वेश्चन, बट आई एम गिविंग यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो एलिफेंट ग्रुप का लीडर फीमेल होती है। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड इज 22 मंथ्स। कैल्विंग एज ऑफ elephants is 40 to 60 years, and largest number of elephant are in कर्नाटका। अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि अभी ये देखिए, ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 है, और ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था कि 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था तो केरला में एक इंसिडेंट हुआ था कि केरला में ये फीमेल एलिफेंट थी, प्रेग्नेंट फीमेल एलिफेंट थी, और उसके लिए किसने ट्रैप रखा था और पाइनएप्पल के बीच में अलग अलग क्रैकर्स फिलअप करके उस फीमेल एलिफेंट को खाने के लिए छोड़ दिया।
and what happened that female elephant ate that pineapple filled by crackers, और वो क्रैकर्स बर्स्ट हुए उसके पेट में, और वो फीमेल एलिफेंट और उसका बच्चा ये दोनों मर गए। और ये इतनी दुखद घटना थी कि पूरे देश में इसकी चर्चा भी हुई और बहुत लोगों ने दुख भी व्यक्त किया। फिर आगे जाके जिसने ये किया था उसको अरेस्ट भी किया गया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट करंट अफेयर्स में चल रहा था। दैट्स व्हाई दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन इंडियन एलिफेंट्स। ठीक है, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स की न्यूज को ये लोग उठाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इज प्रोटेक्टेड एरियाज। जितने भी नेशनल पार्क्स है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। और इस बार ये क्या पूछा था कि प्रोटेक्टेड एरिया एंड रिवर बेसिन, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया किस रिवर बेसिन में है, ये पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, मंगलम टाइगर रिजर्व एंड वयनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज एंड रिवर बेसिन्स। सो रिवर एक इंपॉर्टेंट थीम है, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी रिवर किस माउंटेन रेंज के पास से गुजरती है, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, विच डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, विच रिजर्वायर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, विच प्रोटेक्टेड एरिया इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे। And same things are followed in state services as well, state services exams. ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट बर्ड स्पेशीज, ये भी एक थीम है। और इसमें ये पूछा गया था कि सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है। और ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन, आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये क्या है। तो इनके नाम से ही पता चलता है कि दीज आर स्पेशीज ऑफ बर्ड्स, एंड बर्ड स्पेशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी इंपॉर्टेंट बर्ड स्पेशीज है, रेप्टाइल स्पेशीज है, एम्फीबियन स्पेशीज है, जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स है, कुछ बर्ड्स है जो साइबेरिया से माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं। भरतपुर इज वेरी फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। नेक्स्ट जो थीम है वो प्रोटेक्टेड एरिया एंड एनिमल से रिलेटेड है कि कौन सा एनिमल किस एरिया में और किस हैबिटेट में रहता है। फॉर एग्जाम्पल कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, और उसमें ये पूछा गया था कि इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर इंडियन स्वैम्प डियर विच इज कॉल्ड एज बारासिंगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कान्हा नेशनल पार्क वाज द करेक्ट आंसर, कि पूरे इंडिया में स्वैम्प डियर या बारासिंगा ये कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड दैट, और इसीलिए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल स्पेशीज है और उनके हैबिटेट है, या फिर किस नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल पाया जाता है, इस टाइप का आपको चार्ट बना के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट थीम इज डियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऑन मस्क डियर, इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज और उनका हैबिटेट, इसके बारे में ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही साल में 2 बार पूछा गया। पहला क्वेश्चन स्वैम्प डियर के बारे में
और दूसरा क्वेश्चन मस्क डियर के बारे में क्या पूछा है, व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मस्क डियर। ओके, और 4 ऑप्शन, आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस नेशनल पार्क। तो इसमें से जो हिमालयन नेशनल पार्क है, हिमालयन हैबिटेट में मस्क डियर पाया जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल इज अ मेजर फोकस एरिया। ठीक है, और ये क्यों पूछा जाता है नेचुरल हैबिटेट और इस टाइप का क्वेश्चन कि कौन सा एनिमल किस नेशनल पार्क में पाया जाता है या कौन सा एनिमल किस हैबिटेट में पाया जाता है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट इज इंपॉर्टेंट थीम। और एनवायरमेंट और बायोडायवर्सिटी में अगर आप देखोगे, न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स बायोडायवर्सिटी रिलेटेड आते हैं उसमें नेचुरल हैबिटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, मैन मेड प्रोसेसेस की वजह से जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, गैंजेटिक डॉल्फिन्स के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो गैंजेटिक डॉल्फिन्स का मेजर प्रॉब्लम ये था कि गंगा रिवर में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स बनाए हैं उसके वजह से सिल्टिंग बहुत होता था और रिवर का जो बेस है उसमें सिल्ट या फिर गंदगी बहुत ज्यादा जमा हो जाती थी और इसीलिए जो गैंजेटिक डॉल्फिन है उनका जो नेचुरल पाथवे डिस्टर्ब हुआ करता था। दैट्स व्हाई गैंजेटिक डॉल्फिन वाज आल्सो आस्क्ड। उसके बाद टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ जो मैन एंड एनिमल कंफ्लिक्ट है ये बहुत बार होते रहते हैं। मैन एंड एनिमल कंफ्लिक्ट, लेपर्ड्स सोसाइटी में चली जाती है, रेसिडेंशियल एरियाज में टाइगर चला जाता है। तो दैट्स व्हाई इसका जो मेन रीजन है दैट इज नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। और इसीलिए इंपॉर्टेंट एनिमल स्पेशीज, एंडेंजर्ड एनिमल स्पेशीज और उनका नेचुरल हैबिटेट, इसके ऊपर भी हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट थीम्स। और बाकी जो थीम्स है ये मैंने आपको एक्सेल शीट में मैंने दे दी है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ रही है, इससे आपको हेल्प हो रही है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी द क्वेश्चन।